Good evening, everyone. Everyone's heads covered up, and we are starting this online session, one-to-one session, which is going to be about meditation and a kind of meditation which is known as mantra chanting. In the last webinar, where many of you were present, I think Kavita was present, we spoke about different techniques of meditation. We spoke about different techniques of meditation where you try to calm your mind, where you try to calm your thoughts during meditation. Some people sit and relax and then they focus on their breathing. Some people want to kind of do some affirmations while they meditate. Some people use a certain kind of technique, maybe a wall painting or maybe a certain light to focus their attention. Now there is one kind of meditation which is called as mantra chanting meditation. Now what is mantra chanting? Okay, usually in Hinduism, in other religious texts, there are different kinds of mantras. Some use the mantra called Om, some use mantra like Gayatri mantra, some use mantras like Om Namah Shivaya. So all these mantras, when you chant these mantras, okay, you have all your focus, all your energy in chanting these mantras, and because they require your conscious effort to do this, and you need to remember the mantras, and also you need to hear the mantras from your ear. What happens is that there are very few thoughts in your mind. Usually when you meditate using the breath technique, you get a lot of thoughts in your mind, and that is why you just give up in between. But when you chant a specific mantra or when you listen to a specific mantra, what happens is that there are very few chances of your mind getting distracted during meditation. And whenever you lose attention or focus in chanting that mantra or focusing on that mantra, you can again bring back your mind to the same as you bring it to your breath. Okay, so in this current session, we are going to use a mantra which is from the Sikh religion. Okay, it is a Gurbani of Guru Gobind Singh Ji, the 10th Guru of the Sikhs, which is called Chaupai Sahib. Okay, and to discuss the basic benefits of meditation in general and also mantra chanting, it can help you cope up with anxiety disorders, can help you cope up with your depression. It can help in post-traumatic stress disorders. It can help you make behavioral changes. It can help you be more conscious of your thoughts, feeling, and then actions. It can help you reduce mood swings. It can help you in anger management. It can also help you in pain management, and it can help you in improved sleep. Okay, so I will request everyone to just close up their eyes. Okay, and then we are going to start the chanting. You have to focus all your attention on the words which I speak. Even after if 2 minutes you lose your attention, you have to bring back on the words. Don't even uh, you don't get involved in learning the meaning. Okay, don't think that I am not able to understand what is the meaning, but just the focus, the vocal tones of the mantra, the ups and downs, the scales of the mantras, the alap of the mantras. Focus on that parts of the mantras and then just completely immerse yourself in that experience. Okay, everyone, I would request you to find a place where no one disturbs you and where you can close your eyes and sit for 10 minutes. It is going to be a very small session. Okay, and sit for 10 minutes peacefully, close your eyes, and just we would start the chanting. Kavita, Indu, Lakshmi, Indu, go sit at a place where you can focus. Sit at a place where you can focus in a corner of your room, and then you can just close your eyes and we will start. Satnam Tan Vahe Guru Sahib Ji. ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही 10वीं कबियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तव चरणन मन रहे हमारा,
अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब रन को आज संघरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सतर हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजो करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, कट कट के अंतर की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट तब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़े उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूर कछ पेद ना जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती,
बरनत पिन पिन तोहे तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहर रच दीनी, कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिथै उतवट उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण काता, जे अस्तुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याए हैं, ताके काल निकट नहीं है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरह तत्काला, कृपा दृष्टन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मोह हर हो, रिद्ध सिद्ध कर मोह सब होई, दुष्ट छाह छह सकै ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत में सरन तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी, सर्ब ठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दोखते लेहो बचाई, कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता, किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अस्तु जप पये दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल, सुनै गुंग जो याह सुरस ना पावई, सुनै मूड चित लाय चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट ना तिन्नर के रह, हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई, संबत 17 सहस पणिजै, अर्ध सहस पुन 3 कहिजै, पादुर सुदी अष्टमी रवबारा, तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया, पाएंगा हे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबे बहु भेद कहे हम एक न जान्यो, श्री यस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखान्यो दोहरा, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज यस गोविंदास तुहार, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज यस गोविंदास तुहार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. You can open your eyes. Okay, any one of you, do you want to share? Were you able to concentrate on the words? Were you getting thoughts? Were you able to get back your thoughts on the platform? Or was the experience good, or was it not good for you? You may write in the chat box, or if you want your audios to be unmuted, I can do that. Okay, Kavita says experience was good.
Were you able to concentrate all this while on the wordings, the sound, or were there thoughts? What about Paul, Indu, Lakshmi, and Kanishk? Okay, Lakshmi said yes. Okay, can we do a very small, okay, peaceful Indu, very small chanting of just 5 minutes, and then if you have any questions, can we do that if you permit, of 5 minutes? It will be slightly faster than before. Okay, we can do. Paul, can we do? Lakshmi, Kanish, can we do? Okay. Please, everyone, close up your eyes. Just 5 more minutes. Okay. Okay. If you want, I can also share the audio of this chanting with you post the session. But you can use any kind of chanting if you have chanting at your place, which you have more faith into. You can use that chanting also. But it is very helpful to actually do chanting meditation at least once in a day for 10-15 minutes. It will be more better for you to concentrate. Okay, then we are starting again. सतनाम तन वाहिगुरु साहिब जियो रामकली महला तीजा आनंदिक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन पर वार परियां शब्द गावन आईया शब्दो तगा वो हरि केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुखमन आय वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुर बिटो जिस दिया वडियाइया कह नानक सुनो संतो शबद तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित कर सपा गए शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुझिन कौ से नाम हर के लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सत गुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सत गुर है पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहे
वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. So you can open up your eyes. So the first meditation which we did is called Chopai Sahib. The second one we did is called Anand Sahib, and then what we did, the short Ikonkar one, which you also have maybe listened to in some movies. It's called as a Mool Mantra. Okay, so like some people chant Gayatri Mantra. This is called a Mool Mantra, which you can chant in a loop continuously. Okay, so that you can concentrate. And the last one, which we meditated, is called Vaheguru. It's called the Gur Mantra. Now you need not do the same things when you do mantra chanting. You can use any mantra of your choice, where first of all importance is you have love for that mantra, you have belief in that mantra. Okay, it can be anything. It can be, you can chant A B C D X Y Z 1 2 3 4. If you are an atheist, you can use anything. You can use an humming sound. Some people use humming sound to meditate. So if you are an atheist, use humming sound. If you believe maybe in some religion or some religious text, you can use those kind of mantras which you have, and you can use this also. But you should have love for the mantra. You should like chanting that same mantra, and you should be able to understand what you are chanting. So if you have any questions, we have just 7 minutes of webinar left. You can put in the chat box. If you want to answer, I'll unmute you. Any questions related to mantra chanting, meditation or spirituality in general? Kavita, Paul, Indu, and Kanishk and Lakshmi. Any question to ask? Let me unmute Paul. Let me unmute Paul and ask him. Paul, do you have anything to ask? Okay, I'll unmute you. I think you have to unmute yourself, Paul. Recorded it, mantra chanting or instrumental music is applicable, sir? Yes. So I had recorded one mantra chanting meditation with a background sound with the same mantra Vaheguru. It is on my channel. I will also share the recording. But even some people also play live instruments. Even if you know to play an instrument, maybe you want to play guitar or flute or harmonium, that is also a meditation. But you have to focus on the sound, because whenever your mind, you want to make your mind thoughtless, you want to bring it to consciousness, you want to bring it to that focus, you need to use all your ears, all your strength, just to focus on that sound, whatever that sound is. That I know of a person who was a very spiritual person. Okay, his name was Bhai Veer Singh, and he was a writer, and he used to work in a printing press. He was so much engrossed into meditation that he could meditate on the sounds of the machines of his printing press. That is how deeply involved in meditation he was. So any sound, it could be vessels, sound of the vessels and a spoon of this, but you have to completely engross yourself in that sound. Only then it becomes meditation. Kavita, do you want to ask anything? Kavita and Lakshmi and Kanishk, we have 5 minutes only of webinar remaining, as far as Zoom's 40 minutes constraint. Kavita? हेलो, गुड इवनिंग सर. Good evening, Kavita. सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं ये सब करती हूँ, मैं चैंटिंग वगैरह करती हूँ, पर क्या होता है कि जैसे मैं करती हूँ तो करते करते मैं सो जाती हूँ. सो वो क्या है, मतलब या तो मैं
बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गई हूँ। हम्म, ये क्या हो सोना मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक फॉरगिवनेस का भी था, तो हम्म। उसको भी सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो तो ये कविता, चीज होता है। ओके, पहले कविता जी से लेते, फिर लक्ष्मी जी के पास आते हैं। कविता, क्या है कि जब हम मेडिटेट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेट करना, नया नया स्टार्ट करते हैं मेडिटेट करना, तो उस टाइम पे जो बेस लेवल ऑफ जो सबसे क्लोज बेनिफिट हमको जो मिलता है ना, वो रिलैक्सेशन का है। ठीक है, एक होता है कि कंसंट्रेशन। ठीक है, बिगिनिंग में कंसंट्रेशन वाला लेवल नहीं आएगा, पहले रिलैक्सेशन वाला लेवल आएगा। ओके, व्हाई? बिकॉज यू नीड रेस्ट, बिकॉज योर you can say your inner body or your soul knows that what you need the most right now. Okay, maybe you have a lot of issues with marital life, then maybe relationship, then money issues, then overthinking, then stress, whatever, so many things, health issues. अब इससे रिलैक्स होने के लिए बॉडी को पहले रिकवर होना जरूरी है। तो मेडिटेशन आपको पहले वो चीज देगा जो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट है। तो पहले रेस्ट की जरूरत है, तो क्या होगा, 1 वीक 10 डेज 15 डेज तक हर बार मेडिटेट करके आप सो जाओगे, सो जाओगे, सो जाओगे। इट इज लाइक ए रीबूट ऑफ योर माइंड। ओके, वो रिबूट मोड से जब वापस आ जाओगे, रिफ्रेश होके वापस आ जाओगे, उसके बाद अचानक से एक दिन जब मेडिटेट करने बैठोगे तो नींद नहीं आएगी और कंसंट्रेशन बनने लग जाएगा। तो ये धीरे धीरे, किसी के लिए होता है कि 3-4 दिन ऐसा हुआ नींद आने वाला और वो कंसंट्रेशन स्टार्ट हुआ, किसी के लिए 3-4 वीक्स हुए। वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा हम मेंटली डिस्टर्ब्ड है, कितना ज्यादा हमको रिबूट की रिक्वायरमेंट है। तो नींद आना नॉर्मल है, एक्चुअली अच्छा साइन है। अगर मेडिटेशन करने से, बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग मंदिर में बैठे, गुरुद्वारे में बैठे, हमने भजन सुना, हम लोग सो गए, नींद आ गई, तो बहुत लोग सोचते हैं हम नास्तिक है या हम लोग का फोकस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तुमको असर किया, क्योंकि इट कुड सरपास योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इट कुड रीच दैट पॉइंट दैट इट कुड रिलैक्स यू टू स्लीप। क्योंकि कितने सारे लोग सेडेटिव्स लेते हैं, उनको नींद नहीं आती, और सिर्फ आपको कुछ सुन के नींद आ गई, तो मतलब है कुछ अच्छा असर हुआ है। हम लोग लक्ष्मी पे जाते हैं क्योंकि सिर्फ 2 मिनट बाकी है। जी हाँ, लक्ष्मी जी, 2 मिनट बाकी। गुड इवनिंग गुरप्रीत गुड इवनिंग लक्ष्मी जी। जी। ये खाली पेट में करने के लिए, खाली पेट में या भोजन करने के बाद करने से फर्क क्या है इसमें? ओके, सी नॉर्मली क्या है कि खाली पेट का मतलब, एक तो हो गया खाली पेट, आप सुबह सुबह उठे खाली पेट, दूसरा हो गया हंगर पैंग हो गया, आपको भूख लगी है। ठीक है, तो एक कबीर जी की वाणी में आता है कि भूखे भगत ना कीजिए, मैं भूखे पेट भक्ति नहीं कर सकता हूँ। तो यूजली ऐसा हो कि आपके पेट में कुछ लाइट मील हो, आपने अगर सुबह उठे हो, आपने हल्का सा लाइट मील, कुछ में भी रात के सोक्ड आलमंड्स खा लिया, कुछ भी लाइटर मीडिया, एक फ्रूट खा लिया, एप्पल खा लिया, तो कुछ अंदर पेट में हो, तो आपका माइंड उसमें नहीं जाएगा। दूसरी चीज है, बहुत सारे लोग मोबाइल फोन बाजू में रखते हैं और उनका मोबाइल रिंग हो रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, और वो उल्टा कर देते हैं मोबाइल, लेकिन उनका माइंड मोबाइल में ही है, किसका मैसेज था, क्या मैसेज था, क्या होगा, मैं रिप्लाई करूं नहीं करूं, तो उनका मेडिटेशन तो खराब हो गया। इसलिए वो फोन उठाओ, उस पर्सन को रिप्लाई करो, फोन स्विच ऑफ करो, दूसरे रूम में रखो, फिर मेडिटेट करो। तो डिस्ट्रैक्शन अगर सामने है तो उसको डिस्ट्रैक्शन को केटर कर दो, उसको अवॉइड करोगे तो वो वापस दिमाग में तो चलता ही रहने वाला है डिस्ट्रैक्शन। सिर्फ 1 मिनट बाकी है, किसी को कुछ पूछना है तो, हम नहीं तो एंड कर सकते हैं। और क्या आप चाहते हैं रोज में हाँ जरूर, रोज में कितना बार करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से जो मेरा रूटीन होता है कि आप सुबह उठ के आपने जब ब्रश कर लिया, फेस वॉश कर लिया, और अगर आपने नहा लिया तो बहुत ही अच्छा है, तो आप सुबह करिए, और सोने से पहले, ये दोनों टाइम पे, क्योंकि सुबह आप हमको चाहिए कि जो रात को हम सोए हैं, बहुत सारे थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चले हैं, या सुबह उठ के हम लोग एंशियस है अपने पूरे दिन के बारे में, तो वो हम लोग टेक केयर कर ले मेडिटेशन से, हम लोग के अंदर सेल्फ बिलीफ जो है वो वापस से री एनर्जाइज हो जाए। और रात को सोने से पहले इसलिए क्योंकि पूरे दिन का जो कचरा है जो माइंड में है, उसको हम लोग स्वीप कर दे उसको, और रात को ब्लैंक होके सोए, ताकि हम लोग को इफेक्ट ना हो। बस हम लोग एंड करते हैं, सिर्फ 20 सेकेंड्स ही बाकी है। ठीक है, सो आई थैंक पॉल, कनिष्क, लक्ष्मी एंड कविता फॉर बीइंग प्रेजेंट, क्योंकि ये टॉपिक्स पे कोई अटेंड करता नहीं वेबिनार। अगर वापस से आपको रिक्वायरमेंट होगी, जरूर आप मुझे मैसेज में डालिए कि अगर हमको ऐसा कुछ वापस अरेंज करना चाहिए, तो मैं जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर बीइंग प्रेजेंट, गिविंग योर टाइम, and we'll meet again in another session if you all require. Thank you so much and good day.